Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program, semester 1, and the subject is financial accounting. We have started our class from the last class. पिछली class जो हमने की थी, उसमें हमने शुरू किया था Friday को. I have shown you syllabus also. So I am again showing it because few students were there who were not having the syllabus. I told you to take the screenshot if required. Otherwise, you will get it on the website of SOL as well. Fine. So this is the syllabus of financial accounting that you need to cover in your semester exam. 5 units are there. Okay. Unit 1 is the introduction, in which you have to study about the basic concepts like accounting principles, accounting concepts, conventions, accounting standards, from which you will get the theory question. ठीक है कि लाइक आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, अलग अलग मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है, या फिर आपने सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा है, कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा है. यू हैव स्टडीड वेरियस कंसेप्ट्स, so you can get a theory question on that. You have studied conventions, full disclosure, materiality. So four conventions was there, right? और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो भी हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग के आपको चैप्टर मिलते हैं, दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? टू मेक डिफरेंट फर्म्स एट पार्स, टू मेक देम कंपेरेबल. तो वहां पर उसकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि लाइक अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट फर्म्स फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन, या और भी कोई उनकी लाइक जो एसेट्स वो शो कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेरियस दे हैव डिफरेंट मेथड्स टू फॉलो. So because of these accounting standards, there will be uniformity, so which make them comparable. Fine. So various accounting standards, तो उनके बारे में आपको दिया हुआ है. The two main practical topics in unit 1 are your final accounts and NPO. जो आपका ये लिखा हुआ है, preparation of financial statements of profit making sole proprietorship trading firm with additional information. This is your फाइनल अकाउंट्स. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपका फाइनल अकाउंट्स होता है. सेकंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज योर एनपीओ. These two topics you have already done in your 12th. So this is the advanced concept given in this semester exam. Unit 2 is the depreciation accounting and inventory valuation. These two topics are covered here in these second unit. Depreciation accounting, जो आपका you will get it under property, plant and equipment, right? And second one is inventory valuation. So in depreciation accounting, you have to cover two methods, straight line method and WDV method. And inventory valuation, there are various methods to value your inventory. आपका जो stock है, stock को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बट यू हैव टू डू ओनली 3 मेथड्स, FIFO, LIFO and weighted average. You will get practical from these two topics. Then there is accounting for hire purchase and lease transaction. तो accounting for hire purchase में आपको basically partial और full repossession करना है, और profit computation के लिए आपको सिर्फ एक मेथड यूज करना है, stock and data system. फाइन. इसके अलावा आपका लीज कंसेप्ट, लीज ट्रांजैक्शन टॉपिक है. इसमें से बेसिकली आपका सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है एज पर द गाइडलाइंस. आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है. नहीं तो इसमें कुछ हो सकता है, छोटी मोटी जर्नल एंट्रीज आपको दे दें, बट यूजुअली इसमें से थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है. यूनिट 4 इज द ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. तो ये यहाँ पर ये वाले दो टॉपिक है. ब्रांच अकाउंटिंग जो है कि अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस है, बेसिकली कि एक कंपनी की कई ब्रांचेस अलग अलग जगह हैं, तो उनकी अकाउंटिंग हम किस तरीके से करते हैं. दिस इज अंडर दिस टॉपिक. तो इसमें आपको दो मेथड करने हैं, डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम. और आपको सिर्फ डिपेंडेंट ब्रांचेस पढ़ना है, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस नहीं हैं आपके कोर्स में. दूसरा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की एक फर्म के अंदर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर देयर, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स आर देयर. सो आपको उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यू हैव टू डू अंडर दिस. तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें आपको आ सकता है, थियोरी भी आ सकता है. फिर आपका जो 5th यूनिट है, इसमें आपको दो टॉपिक्स नजर आ रहे हैं. एक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और accounting for partnership firm. There is choice between the two, but for you people you have to do only accounting for partnership firm, क्योंकि जो computerized accounting system है, this is your tally.
ठीक है, टैली आप लोगों ने सुना होगा, टैली सॉफ्टवेयर, जिसमें हम अकाउंटिंग बेसिकली हमारी की जाती है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो वो इसमें होता है, जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, जो आपको कंप्यूटर मतलब जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के टैली का क्वेश्चन करते हैं. सो इन योर पेपर accounting for partnership firm will come, in which specifically you have to do dissolution firm, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये आपको सिर्फ इसकी थियोरी पढ़नी है, सिर्फ आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए. जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपका डिसोल्यूशन में से आता है. This is all about your syllabus. In the last class, I have started with the topic final accounts, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था. Today I am going to start with the next question. I hope my screen is visible to everyone. बुक आपको इसके लिए जो रेफर करनी है, आप बी के गोयल ले सकते हैं. आई एम अगेन टेलिंग यू द नेम ऑफ द बुक, बी के गोयल. इसके अलावा जे आर मोंगा और लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सर, ये आपको जो है ये बुक इसमें मिलेगी. बेटा, आई डोंट हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप. I don't have any WhatsApp group. In the last class, I have shared some group links, but that was already full. So I don't have any group. You can make your own group and add different students in that. You can see chat of each other, I think. So you can contact with each other. You can make a group of WhatsApp and resolve your queries. Every book is best as per your desire, like which is convenient to you. आई एम टेलिंग यू 3 बुक्स. बी के गोयल, जो मैं क्वेश्चंस अभी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था, आई एम डूइंग फ्रॉम बी के गोयल. बट be ensured that you are taking book for program course, because there are 2 books for honors and for program, so you have to purchase book for program only. ठीक है, otherwise as well study material is also there on the website which you can refer, which is also very good. You will get help from that and you can refer 10 years also. All right, so let's start with the question. I'll show you the question. मैं आपको question दिखा रही हूँ. You please take the screenshot, because then I'll share the board. बोर्ड पे मैं ये क्वेश्चन फिर करके दिखाऊंगी. तो it's better to take a screenshot, otherwise you will not able to understand. Fine. So please take a screenshot of this question. Please take the screenshot of this. This is the trial balance given to you. I have cut off the upper part of this. I'm just showing you the main figures you required. From opening stock till depreciation on land and building. अभी एक screen में इतना आ रहा है, इसका screenshot ले लो please. Then I'll scroll it down. I hope you all have taken the screenshot. Please take it quickly. Give me a second. Yes. Take this one. You will get it in 3 clicks. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो you have to take 3 pictures of it. Please take the screenshot of the second screen. And finally, I'm showing you the last one. This is the final. I hope you all have taken this screenshot. Please let me know, have you taken or not? कुछ भी ले सकते हो बेटा. You have to cover the topic financial accounting. Okay. तो आपको सिलेबस मैंने दिखा दिया. जो भी बुक आपका सिलेबस कवर कर रही हो, you can take any of that. बेटा, there must be a problem on your part, Vansh. I am showing you the cover of my book, but this is
बिकॉज अभी मैंने बैकग्राउंड लगाया. आई विल शो यू, बट दिस इज फॉर ऑनर्स एक्चुअली. But basic financial accounting, you will get the book by this name, Basic Financial Accounting. I think I am audible now. I have increased my volume. So shall we start? Please go through the question. I am discussing the question first, then I will start doing it on the board. Please go through the question. In the trial balance, opening stock is given. Then they have given purchases adjusted. Adjusted purchases का क्या मतलब होता है? उसमें कुछ balances जो है adjust होते हैं. ठीक है, balance like most of the time closing stock is adjusted in your purchases. Beta, I have shared my screen at present. What do you want to see? I am sharing the question. Wait. I hope it is visible now. Yeah. After opening stock, purchase is adjusted. Most of the time, closing stock is adjusted in this. Then sales is given. Closing stock here is given in the trial balance. So you all know कि अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया जाता है तो वो हमारा दो जगह पर आता है. एक हम ट्रेडिंग अकाउंट में उसको रखते हैं और दूसरा हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं एज स्टॉक. But if we found closing stock in the trial balance, it means closing stock is already adjusted in the purchases. ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस जो है वी कैन पुट दैट ओनली एट वन प्लेस. ट्रायल बैलेंस में आपको जो भी बैलेंसेस दिए हैं उसको हम सिर्फ एक जगह पर रखते हैं. तो यहाँ पर अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मिला है, इट मींस परचेजेस में वो ऑलरेडी एडजस्टेड है. ठीक है, तो ये जो हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है दैट वी विल शो इन दी बैलेंस शीट ओनली. देन लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन, मशीनरी. फिर आपको दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. जो आपको लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी दो आपको एसेट्स दिए थे उसमें आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं. तो दिस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वी शो एट दी बैलेंस शीट ओनली. ठीक है, क्योंकि आपने अगर डेप्रिसिएशन आपने चैप्टर पढ़ा है तो अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप दिखाते थे तो उसको अल्टीमेटली कहाँ शो करते थे? बैलेंस शीट में. जो हमारे एसेट्स होते थे नेट वैल्यू उनकी हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस डेप्रिसिएशन. देन कैपिटल इज गिवन, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट, सैलरी, रेंट रेट, टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. तो ऊपर जो था आपको डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया था, यहाँ पर आपको क्या दिया है? डेप्रिसिएशन. तो दिस इज फॉर करंट ईयर. अभी तक आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या मिलता है? डेप्रिसिएशन का आपको रेट आपको दे देते थे, डेप्रिसिएशन रेट. आप खुद से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे और फिर उसको आप P&L में दिखाते थे और आप जो है उसको बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट में डिडक्ट करके शो करते थे. राइट, बट यहाँ पर इन्होंने आपको ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेटेड अमाउंट दिया हुआ है और ऊपर क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इट मींस ये जो डेप्रिसिएशन बैलेंसेस हैं दीज आर ऑलरेडी एडेड इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अब आपको ट्रायल बैलेंस में मिला है तो जो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है ये हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है क्योंकि. ठीक है, और ये जो है ये मान के चला जाएगा कि ये जो ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है. देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो अभी तक सिर्फ इंश्योरेंस अगर हमें दिया होता है तो इंश्योरेंस हमारा किसी भी चीज का हो सकता है, बिजनेस है, मशीनरी का भी हो सकता है या किसी हमारी पूरी फर्म का इंश्योरेंस हो सकता है. इट कैन बी एनी. बट यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है एक पर्सन का है. तो ये जो है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर है इट मींस ये वाला जो लाइफ इंश्योरेंस है ये सोल प्रोप्राइटर का है. सो इट विल बी द ड्रॉइंग. ये हमारे बिजनेस एक्सपेंस का पार्ट नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग. तो जब हम बैलेंस शीट में ड्राइंग्स जहां शो करेंगे वहीं पर ये वाला ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा बैलेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पर्सन का होता है और सोल प्रोप्राइटर में ये सोल प्रोप्राइटर का होगा.
which is not a business expense, so it should be added to the drawing of the proprietor. Then income tax, फर्म कभी भी इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स जो होता है ये भी पर्सनल एक्सपेंस हमेशा माना जाता है, तो इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। फिर आपको ड्राइंग्स दी हुई हैं। फिर इंश्योरेंस, तो दिस इज जनरल इंश्योरेंस, सो इट विल बी कंसिडर्ड ऑफ बिजनेस ओनली, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, और फिर आउटपुट CGST 9000 एंड आउटपुट SGST रुपीज 9000 पेड। तो ये आपका GST बेसिकली दिया हुआ है, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि CGST SGST 9,000 दोनों का उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। फाइन। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर रुपीज 2000। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं, तो मतलब वो पर्सनल यूज के लिए किए, और पर्सनल यूज के लिए जो भी चीज जाती है दैट इज कंसिडर्ड एज ड्रॉइंग। ठीक है, तो एक तो ये ड्रॉइंग में ऐड हो जाएगा। दूसरा गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो गुड्स का इम्पैक्ट किस पे आएगा, हमारा परचेजेस पे। ठीक है, तो इस वाली एडजस्टमेंट की दो एंट्रीज क्या होंगी, परचेजेस में से हमारा ये वाला बैलेंस माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब इतने गुड्स विड्रॉ कर लिए तो वो हमारे फर्दर जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ये गुड्स यूज नहीं हो सकते, तो इतने वैल्यू से हमारी परचेजेस रिड्यूस हो गई, एंड दिस इज द पर्सनल ड्राइंग। ये जो है पर्सनल गुड्स उसने अपने लिए यूज किए हैं, तो दिस विल बी एडेड इन द ड्राइंग। फिर है गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 3000 वर डोनेटेड बाय द एंटिटी। 3000 के गुड्स डोनेट कर दिए, अब क्योंकि गुड्स ही डोनेट कर दिए तो ये आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तो यूज नहीं हो सकते, तो अगेन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। कभी भी गुड्स अगर आपको दिए हुए गुड्स किसी भी पर्पस के लिए यूज किए गए तो उससे अल्टीमेटली हमारी जो परचेजेस है, परचेजेस विल ऑलवेज बी रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट। if we are using goods for any purpose, for drawings, for distribution, for any purpose, in that case purchases will be reduced. Fine. तो ये जो 3000 रुपए एक तो परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, दूसरा इन्होंने डोनेट किया है, तो डोनेशन इज व्हाट, इट विल बी शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डोनेशन अगर कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसको चैरिटी या डोनेशंस के नाम से इसको हम शो कर देंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज 4000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टीजमेंट। 4000 के गुड्स एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए इन्होंने फ्री सैंपल्स बांट दिया, तो अगेन गुड्स आर अफेक्टेड, सो परचेजेस विल बी रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट, और एडवर्टीजमेंट इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है तो इट विल बी शोन एज एडवर्टीजमेंट इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Next is goods costing rupees 5000 were destroyed by fire and insurance company accepted a claim of rupees 4000 not yet received. 5000 के गुड्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं फायर से, तो अगेन विच इज व्हाट आइटम विल बी अफेक्टेड, क्योंकि गुड्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं तो यहाँ पर हमारी अगेन परचेजेस अफेक्ट होती है। पर आपको जो है बुक्स में इसको जो है दो तरीके का आपको शो किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि बाय फायर है तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल रीजन है ये, तो एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द जर्नल एंट्री वी यूजुअली डू। बट इसका ट्रीटमेंट आपको दोनों तरीके से मिलेगा। कई जगह मिलेगा कि परचेजेस में से ये जितनी वैल्यू के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, जैसे 5000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो it will be reduced from the purchases, or it can separately be shown on the credit side. ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के नाम से आप इसको क्रेडिट साइड पर भी शो कर सकते हो, तो किसी किसी बुक में मिलेगा लॉस बाय फायर है तो वो अलग से क्रेडिट साइड पर शो कर देंगे, उसको परचेजेस में से डिडक्ट नहीं करेंगे। सो बोथ विल बी करेक्ट, यू कैन गो फॉर ईदर वे, या तो परचेजेस में से डिडक्ट करके दिखा दो या फिर क्रेडिट साइड पर दिखा दो। इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम वहां पर पास किया पर अभी रिसीव नहीं हुआ, अगर रिसीव हो जाता तब हम क्या करते, परचेजेस में ऐड कर देते। ठीक है, क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय होते उनके अगेंस्ट ही 4000 रुपए रिसीव होते, तो उस केस में 5000 परचेजेस में से माइनस करते और 4000 हम परचेजेस में ऐड करते, या फिर जो हम क्रेडिट साइड पर लॉस बाय फायर दिखा रहे हैं वो सिर्फ 1000 का दिखाते, क्योंकि 5000 का लॉस है जिसमें से 4000 रिसीव हो गए, अल्टीमेटली लॉसेस ऑफ 1000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ
तो पहली एंट्री क्या होगी, आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर दिखा दोगे लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा, जब क्लेम आपका 4000 का पास हुआ, लॉस आपका 5000 का है, तो 1000 इज नेट लॉस। तो नेट लॉस विल बी शोन इन दी P&L अकाउंट, राइट। ध्यान से समझना ये एंट्री को। 5000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं बाय फायर, सो द जर्नल एंट्री इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 5000 शो करोगे। नेट लॉस 1000 का हो रहा है क्योंकि 5000 के बदले 4000 मिल रहे हैं, 1000 का नेट लॉस P&L अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि 4000 अभी तक रिसीव नहीं हुए, these are yet to be received, so this is that will be asset। तो ये आपका 4000 एसेट साइड पर जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस एडजस्टमेंट एंट्री। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीपेड, तो दैट यू ऑल नो, इंश्योरेंस में इसको एडजस्ट कर देंगे, P&L अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस हो जाएगा, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है, तो ये एसेट साइड पर आएगा। राइट ऑफ फर्दर ₹2000 एज बैड डेट्स, तो एक तो बैड डेट्स हमें ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये हमारे फर्दर बैड डेट्स है, तो फर्दर बैड डेट्स का क्या होगा, एक तो ये हमारे बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में उनमें ऐड हो जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। और दूसरा, डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स में से ये 2000 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एडिशनल बैड डेट्स है, तो दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दी डेटर्स। Maintain a provision for bad and doubtful debts equal to 5% of sundry debtors। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो 5% मेंटेन करना है। इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो हम दो प्रोविजन नहीं शो कर सकते। तो जहां पर आपको मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, मतलब आपको सिर्फ इतना प्रोविजन रखना है, तो आपके जो भी नेट डेटर्स आएंगे उसका 5% आप कैलकुलेट करोगे और उस अमाउंट को कंपेयर करोगे द अमाउंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। फाइन। तो उसमें अगर आपका सपोज आपका 5% जो है वो 5000 आता है, ठीक है, 5% जो आपको बेड डेट्स मेंटेन करने हैं वो सपोज 5000 आपके आए, और आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 4000, तो आपको 5000 मेंटेन करना है। अभी 4000 आपका ऑलरेडी है, 1000 कम है, तो 1000 और क्रिएट कर देंगे। या फिर आपका 5000 आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में आपको 5600 दिया हुआ है, तो आपको मेंटेन करना है 5000, और आपने ऑलरेडी किया हुआ 5600, तो 600 ज्यादा किया हुआ है, तो दैट विल बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से करते हैं, या फिर एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बेड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने हो सकता है पढ़ा भी हो ये 12th में। सीधा सीधा हमें क्या करना है, अगर हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एडजस्टमेंट एंट्री में भी दिया है और हमें वो ट्रायल बैलेंस में भी दिया है, इन दैट केस व्हाट वी डू, वी यूज सिंपल फॉर्मूला, न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बेड डेट्स minus old provision. This is the formula we use. So we will use this formula here also. Last is sales include output CGST rupees 10,000 and output SGST rupees 10,000. The proprietor is not entitled to input tax credit as he has purchased the goods from an unregistered supplier. तो यहाँ पर क्योंकि प्रोप्राइटर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ये सेल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये जो सेल्स में हमारे 20,000 का जीएसटी इंक्लूडेड है, दैट विल बी डिडक्टेड। फाइन। तो ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। So I am removing my background and I am doing this question on board now. You please start your question in your registers. I hope my board will be visible to everyone. Fine. So I'm starting with the question. Make trading and profit and loss account.
क्वेश्चन सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियर, एक एक एडजस्टमेंट आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. सो एज पर दैट start preparing your trading and profit and loss account. It's visible, right? So सबसे पहले हमारा आएगा to opening stock. To opening stock that is given as 30,000. Then we'll take purchases. क्योंकि परचेजेस में हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, सो विल टेक इट इनसाइड 4,65,000. इनसाइड द कॉलम इसको रखेंगे क्योंकि परचेजेस में आपको एडजस्टमेंट करनी है. बेटा बोर्ड छोटा दिख रहा हो तो मुझे पिन कर लेना. फाइन, आप लोगों को आता होगा, मुझे पिन कर लेना. इसमें हमें एडजस्टमेंट क्या करनी है, देखो नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया था, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर. सो दिस इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स विल बी डिडक्टेड. ये बच गया 4,63,000. फिर इसके बाद गुड्स डोनेटेड, तो यहाँ पर आएगा डोनेशन लेस डोनेशन. डोनेशन कितने की है 3,000. फिर हो गया 4,60,000. फिर माइनस कर देंगे फ्री सैंपल्स. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं फ्री सैंपल्स में, तो वो है हमारा 4,000. ठीक है, तो नेट हमारा हो गया 4,56,000. दिस इज योर नेट परचेजेस 4,56,000. फाइन. फिर आपको यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया, ना कोई वेजेस है, ना कैरियज इनवर्ड है, नथिंग इज गिवन टू यू. तो ये यहाँ पे हो गया. अब यहाँ पर लेंगे सेल्स. सेल्स हमें दी हुई है 9,75,000. इसमें जो हमारी लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई थी, सेल्स इंक्लूड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तो वो नहीं कर रही है, उसको हम डिडक्ट कर देंगे. GST, सेल्स माइनस GST 20,000. तो नेट हमारा हो गया 9,55,000. क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि परचेजेस हमारी ऑलरेडी एडजस्टेड है, राइट? यहाँ पर और क्या आएगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर. जो मैंने आपको बोला था कि या तो आप परचेजेस में से माइनस करके दिखा दो, या फिर आप इसको यहाँ पर ये क्रेडिट साइड पर दिखा दो. यू कैन डू ईदर ऑफ देम. तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ वैल्यू 5,000. 5,000 की वैल्यू के जो गुड्स हैं वो लॉस थे. तो ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही आएगा. हमने सारी जो हमें एडजस्टमेंट दी थी गुड्स के रिगार्डिंग, वो हमने सारी यहाँ पर एडजस्ट कर दी. स्टॉक दिखा दिया, सेल्स दिखा दिया. सो आवर ट्रेडिंग अकाउंट हैज बीन कंप्लीटेड. वील फाइंड आउट नेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम हियर. सो ये कितना हुआ, टोटल इज 9,60,000. 9,60,000 and gross profit here is, it should be 4,74,000. आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी 4,74,000. आई होप सबका ये आ रहा होगा. अभी जो है आपका आई थिंक चैट डिसेबल हो गया, तो अगर अभी पहले मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ. आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, यू कैन रेज योर हैंड. ठीक है, या तो आप अपना हैंड रेज करो, आई विल बी एबल टू सी इट, देन आई विल अनम्यूट यू. आप जो है फिर अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, तो उस टाइम आप डाउट पूछना. बट लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस क्वेश्चन. मुझे पहले क्वेश्चन फिनिश करने दो, देन आई विल अनम्यूट यू इफ एनी डाउट इज देयर. ओके, सो P&L अकाउंट शुरू करेंगे. तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,60,000.
74,000। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं शुरू से। इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन आपको दो दिए हुए हैं, एक आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग और एक दिया है मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग वो है आपका हाउ मच 6,250 और मशीनरी पे आपका दिया हुआ है 20,000। ठीक है, तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो लेना है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। जो सिर्फ डेप्रिसिएशन है वो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, वो हमारा P&L अकाउंट में आएगा। तो टोटल इज 26,250. This is your depreciation. Then they have given what salaries. Two salaries हमें दिया हुआ है 40,000। सैलरीज के बाद दिया है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस आर 20,000। देन ट्रेड एक्सपेंस, ये सीधे सीधे आते जाएंगे क्योंकि इनके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 5,750। ट्रेड एक्सपेंस के बाद डेप्रिसिएशन वी हैव टेकन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो ड्राइंग था तो ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम टैक्सेस आल्सो ड्राइंग विल बी शोन इन बैलेंस शीट, ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस, तो दिस इज जनरल इंश्योरेंस, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस, हमें यहाँ पर इंश्योरेंस दिया 5,000 और इसका हमें बताया है एडजस्टमेंट में 2,000 प्रीपेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है prepaid insurance, so that will be deducted. Prepaid insurance 2,000 will be deducted from here. Net is 3,000. यहाँ तक का बोर्ड आई थिंक सबको विजिबल है, राइट? यहाँ तक सबने नोट कर लिया? यहाँ तक सब कंप्लीट करो। टेक 2 minutes, complete it till now. If all of you will raise hand, how I can unmute you all? Each one of you have raised your hand. Why? After completing this question, I'll allow you to ask your doubt. ठीक है? But after completing this question. I hope you have done till now. I should continue. I am removing the erasing the upper part, trading and profit and loss account. वो trading account I am removing because considering you must have completed the trading account. Gross profit I am repeating, it should be 4,74,000. So after insurance, next what you will take, अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट में से। तो सबसे पहले तो गुड्स विथड्रॉन जो हमें दिया था वो हमारी ड्राइंग है, बैलेंस शीट में जाएगी दूसरी जगह। गुड्स डोनेटेड था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 डोनेशंस जो हमने ऊपर परचेजेस में से माइनस किया था कि गुड्स डोनेटेड हैं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 डोनेशन, वो है हमारी 3,000। फिर आपका जो फ्री सैंपल्स था वो एडवर्टीजमेंट है, तो 2 एडवर्टीजमेंट हमें दिया हुआ है 4,000। ठीक है, इसके बाद जो गुड्स हमारे लॉस्ट बाय फायर थे, इसमें हमें ये बताया था 5,000 के गुड्स थे और इंश्योरेंस क्लेम 4,000 का रिसीव हो रहा है, तो 1,000 का यहाँ पर नेट लॉस है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लॉस बाय फायर 1,000, क्योंकि ये वो लॉस है जो रिकवर नहीं होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया।
फिर है आपका बैड डेट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल अपना फॉर्मूला ले रहे हैं। हम ले रहे हैं यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमें ये निकालना है, तो इन्होंने हमें बोला था 5% प्रोविजन मेंटेन करना है, ठीक है। और हमें यहाँ पर ऑलरेडी प्रोविजन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन इज ऑलरेडी गिवन टू अस। सो इन दैट केस वी यूज द फॉर्मूला। दोबारा मैं अब यहाँ पर लिख रही हूँ वो फॉर्मूला। न्यू प्रोविजन प्लस टोटल बैड डेट्स minus old provision. This is the formula we are supposed to use. New provision plus total bad debts minus old provision. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ वर्किंग नोट। तो अभी मैं वर्किंग नोट एट प्रेजेंट यहाँ पर बना रही हूँ. दिस इज योर, आई इरेज इट. So do it side by. I am writing it here. Working note. I am calculating new provision. तो न्यू प्रोविजन हमेशा किसका कैलकुलेट होता है, नेट डेटर्स का, डेटर्स आफ्टर ईच एडजस्टमेंट। तो आपको जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिए हैं वो आपको दिए हैं 70,000। टोटल डेटर्स गिवन टू यू 70,000। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी एडिशनल बैड डेट्स हमें दिया है। अगर हमें एडिशनल बैड डेट्स नहीं दी होती तो ये हमारे नेट डेटर्स होते, बट यहाँ पर फर्दर बैड डेट्स हमें गिवन है तो पहले वो इसमें एडजस्ट करेंगे। तो नेट डेटर्स हैं हमारे 68,000, ठीक है। तो ये जो हमारे नेट डेटर्स है इसका प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे। तो इसका प्रोविजन कितना आएगा, 5% क्रिएट करने के लिए बोला है। 68,000 का 5% प्रोविजन इज हाउ मच, यू शुड कैलकुलेट इन योर थ्रू योर कैलकुलेटर्स। It should be 3,400. So this is the provision we are supposed to create, right? So यहाँ पर हमारा न्यू प्रोविजन हुआ 3,400। अब हमें लेना है टोटल बैड डेट्स। तो बैड डेट्स एक तो हमें देखो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 5,000 और 2,000 है हमारा एडिशनल। 5,000 bad debts is already given in the trial balance and 2,000 is your additional bad debts. So total bad debts are 7,000 minus old provision as per the trial balance, which is 5,000. So total provision you need to create is how much? This is 5,400. जो आपको अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाना है वो आपको एडजस्ट करके क्या आएगा, 5,400, ठीक है। इसके अलावा बस वी हैव डन ऑल दी एडजस्टमेंट्स हियर। हमें यहाँ पर और कोई हमें इनकम भी नहीं दी हुई है। सो वी हैव टेकन ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ वी विल फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट। प्लीज कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट, इट शुड बी मैच विद माइन। अपना कैलकुलेट करो एंड आई एम कैलकुलेटिंग माइन। यहाँ पर आपका टोटल है 4,74,000। यहाँ पर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज हाउ मच, इट शुड बी 3,65,600। 3,65,600. This should be your net profit. I hope it is coming. 3,65,600 should be the net profit of yours. Fine. I hope you have completed till now. Now finally we have to make the balance sheet. So I'm just erasing this part. Here I'll make balance sheet.
here liabilities, amount, assets, amount. ठीक है, so where should we start from? Let's start with the asset side. So first of all we take the fixed assets. तो यहाँ पर आएगा land and building. लैंड एंड बिल्डिंग आपको टोटल दिया हुआ है एज पर ट्रायल बैलेंस 1,50,000. इसमें से माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस. लैंड एंड बिल्डिंग का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 25,000. सो नेट बैलेंस इज 1,25,000 of land and building. Second, you have to take machinery. मशीनरी आपको दिया हुआ है 4 लाख. इसमें माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट इज ₹80,000. तो नेट आपका हो गया 3,20,000. दिस इज योर मशीनरी बैलेंस. आफ्टर दैट व्हाट यू विल टेक? स्टॉक. Generally, you will find this kind of sequencing in your balance sheet. First of all, you take the fixed asset, then investments. Agar if it is given to you, then you take stock, and then you take your current assets. Okay, and at the end, you will take cash in hand at bank. Now, stock closing stock is given in trial balance. This is ₹35,000. Now you will take sundry debtors. 70,000 डेटर्स आपको दिया है. इसमें से माइनस कर दोगे एडिशनल वेट डेट्स 2,000, तो आपका बचा 68,000. इसमें से माइनस कर दोगे न्यू प्रोविजन. जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने कैलकुलेट किया वो आपका डेटर्स में से माइनस हो जाएगा जो आपने 3,400 निकाला. 3,400 न्यू प्रोविजन कैलकुलेट किया था हमने ऊपर. सो इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर. So its balance will be how much? 64,600. This is your net debtors. Then what should come? Prepaid insurance. Prepaid insurance वो हमें दिया हुआ है 2,000. एंड फाइनली जो हमारा लॉस बाय फायर था उसमें इंश्योरेंस क्लेम 4,000 का मिला था जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, विच वॉज येट टू बी रिसीव्ड. तो दिस इज योर एसेट. सो यू विल राइट हियर इंश्योरेंस क्लेम जो अभी रिसीव करना है. तो वो हमारा एसेट साइड पर हम दिखाएंगे 4,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड. फाइन. सो एसेट साइड हैज बीन कंप्लीटेड. So we'll move on to this liability side. सबसे पहले हमारा आएगा कैपिटल. कैपिटल हमें कितनी दी है? 1,55,000. नेट कैपिटल टोटल कैपिटल इज 1,55,000. इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3,65,600. So total will be 5,20,600. इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स. ड्राइंग्स आपकी माइनस होंगी. ड्राइंग्स में क्या क्या है? एक तो आपको कैश ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पर जो आपका ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स के नाम से है 10,000. दूसरा जो इसमें गुड्स विदड्रॉ किए थे, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन थी गुड्स विदड्रॉन 2,000. एक था लाइफ इंश्योरेंस, वो इसका पर्सनल था तो वो भी ड्राइंग्स में आएगा. ये है 5,000. और एक था इसमें इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पर्सनल एक्सपेंस. सो इनकम टैक्स इज 5,000. दिस इज द टोटल ड्राइंग्स. सो नेट अमाउंट इज 4,98,600. ठीक है. इसके बाद हम वैसे लोन लिखते हैं. लोन वगैरह कुछ दिया होता है, यहाँ कुछ नहीं है. सीधा आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमें ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं 50,000.
और क्या आएगा? जीएसटी देखो, हमें ऊपर सेल्स में उन्होंने बोला था कि सेल्स में 20,000 की जीएसटी इंक्लूड है, 10,000 सीजीएसटी और 10,000 एसजीएसटी, टोटल 20,000 की जीएसटी सेल्स में इंक्लूडेड है। बट हमने पे कितनी करी है? ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है हाउ मच दे हैव पेड, 9,000 ईच, टोटल 18,000 पे किया। तो 20,000 पे करना था, 20,000 में से 18,000 पे किया, तो 2,000 अभी भी पे करना बाकी है। सो दिस इज आवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विच इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर जीएसटी पेबल, दिस इज स्टिल टू बी पेबल। इसमें सीजीएसटी है 1,000, एसजीएसटी है 1,000, तो टोटल हुआ 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप टोटल ऑफ बैलेंस शीट निकालोगे, इट शुड मैच, इट शुड बी 5,50,600. Total of balance sheet should be 5,50,600. So I have done it from my side. Now you can ask your doubts now. So only those students, they should raise hand who have doubts. Otherwise rest of the students please down your hands, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हैंड रेज दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसका भी जो भी डाउट है वो सिर्फ हैंड रेज करो, बाकी प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। I'll unmute you. Priyanka Dogra, I am allowing you. Yes, you can speak up now. You can unmute yourself and you can ask your query. Priyanka Dogra. Do you want to ask something, Priyanka? Yes, speak up. Priyanka, there is lot of disturbance at your background. Priyanka. Okay. Kumkum Sharma is there. Yes, Kumkum, please unmute yourself and ask your query quickly. We don't have much time. Kumkum Sharma, unmute yourself. Do you want to ask something? Sangeeta Panchal. Sangeeta Panchal, ask your doubt. That's why I told you, those who seriously have doubt in question, only please, those students can raise your hand. Otherwise, put down your hands because it is misleading me. It is misguiding me. I don't know how many of you have doubts. To whom should I allow unmute? So I don't know this. Because it is very difficult to unmute each and everyone. Megha Dava. Unmute yourself and ask your doubt. No. Finally, I'm taking one more chance. I am giving Aditya Gupta. Aditya Gupta, please unmute yourself and ask your doubt. ना मैम वो रिवर्स आ रही है सब लिखा हुआ। मैम आप अपनी स्क्रीन कुछ आपका हो सकता है कैमरा सेटिंग में इशू होगा, क्योंकि मैंने और क्लासेस पढ़ाया है तो वो सीधा आता है बोर्ड, उसमें ऐसा नहीं आता है कि वो रिवर्स है। जो भी आप लिख रहे हो ना मैम सब उल्टा दिख रहा है मैम वो। तो कुछ
कैमरा सेटिंग्स में कुछ करना होता है बेटा, आप किसी से पूछो, क्योंकि और क्लासेस में ऐसा नहीं हो रहा है. दे आर एबल टू सी इवन इन योर क्लास, स्टूडेंट विल बी सीइंग इट फाइन. ठीक है, सो टेक हेल्प फ्रॉम गूगल और फ्रॉम एनीवन एल्स. ओके मैम. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि टाइम कम है तो मैं एक क्वेश्चन आपको एक और यहाँ पर शो कर रही हूँ. आई विल डिस्कस द क्वेश्चन विद यू. जितना हो पाएगा विद इन टाइम विल डू इट, otherwise you have to do it by yourself. Okay, so I'm showing you one more question. Please take the screenshot of that. Yes, this is the question that you are supposed to do next. Take it from here. यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का, सिर्फ मेन पार्ट जो मैं आपको शो कर रही हूँ, जो प्लांट एंड मशीनरी से यहीं से शुरू है ये. क्विकली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. I hope you have taken. I am scrolling it down. This is the next one. And this is the final one. ठीक है, please take screenshot of this. Now start discussing this question. Question discuss करना शुरू कर रही हूँ मैं. यहाँ पर आपको ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है. कैपिटल एंड ड्राइंग्स बोथ आर गिवन टू यू. प्लांट एंड मशीन, कैपिटल एंड ड्राइंग हैव यू टेकन? आई होप इट हैज मिस्ड. It should be there. Yes, capital drawings is also given to you. Drawings 10,000, capital 1,70,000. ठीक है, फिर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया है, सेल्स परचेजेस रिटर्न्स, क्योंकि दोनों साइड दिया डेबिट क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों दिया हुआ है. बैड डेट्स रिकवर्ड. सो बैड डेट्स जो है आपका डेबिट साइड पर आता है पी एंड एल अकाउंट में. बैड डेट्स रिकवर इज योर इनकम, सो इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड. Freight inwards. So freight inward is what? This is your direct expense. Freight inward will be shown in the trading account. Freight outwards, this is your indirect expense. This will be shown in P&L account. Then discount. Discount में debit और credit दोनों side दिया है, तो discount allowed भी है, discounts received भी है. So both will shown separately. Discount allowed in debit side, discount received in the credit side. Similarly commission paid, commission received दोनों दिया हुआ है. Rent paid, rent received. Interest paid, interest received. All these are given to you. So accordingly you will show it in both side, debit and credit side respectively. Then office and administrative expenses, clearly आपका P&L का है. This is indirect expense. Selling and distribution expense, this is also your indirect expense. It will go in the P&L account. फिर आपका डेटर्स क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है. आफ्टर दैट लोन इज गिवन 20,000, 50,000, मतलब लोन लिया भी है और लोन दिया भी है. तो ये आपका एक आपकी लाइबिलिटी हो गई और एक आपका एसेट हो गया, राइट. इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट देना, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड वेजेस एंड सैलरी. तो ये आई थिंक आप लोगों को पता है कि अगर हमें इस तरीके से टर्म दी जाती है वेजेस एंड सैलरी, तो यहाँ पर वेजेस भी आ रहा है और सैलरी भी आ रहा है. तो हम इसको कौन से अकाउंट में शो करेंगे? क्योंकि इन जनरल वेजेस वी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड सैलरीज वी शो इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो वी चेक दी फर्स्ट वर्ड जिसमें हमारे अकाउंट में आता है उसको उसी में शो करता है. लाइक फर्स्ट वर्ड इज वेजेस वी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, सो दिस विल बी शो इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अगर हमें सैलरीज एंड वेजेस दिया होता, सैलरीज हमारा P&L अकाउंट का पार्ट होता है,
तो सैलरी एंड वेजेस को हम P&L अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। सो अगर हमें दोनों कंबाइंड दिया है तो इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट वर्ड वेयर वी शुड शो इट. So let's move on to additional information. Closing stock at market price as at 31st March 2008 was 61,500. However, its cost was 80,000. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया है और मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है. सो यूजुअली विच वैल्यू वी टेक, विच एवर इज लोअर. अगर आपको सिंगल प्राइस दिया है तो आपको वही वाली वैल्यू लेनी है. बट इफ बोथ विल बी गिवन टू यू, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, देन यू विल टेक द लोअर वैल्यू. दिस इज आवर जनरल रूल. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लो, वी टेक दैट वैल्यू. फिर डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पर रेट दिया है प्लांट एंड मशीनरी पर 10%. तो आपको पता है डेप्रिसिएशन एक आपका P&L अकाउंट में जाएगा और वो डेप्रिसिएशन आपका बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा. फिर है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम and an additional capital of 10,000 was introduced on 1st October 2007. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जा रहा है, दिस इज एक्सपेंस, ठीक है. तो एक तो हमारा P&L अकाउंट में आएगा और दूसरा कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि प्रोप्राइटर की इनकम हो गई है. सो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट इज द इनकम फॉर द प्रोप्राइटर. सो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल. यहाँ पर एडिशनल कैपिटल बताया है कि 1 अक्टूबर को इन्होंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 10,000. तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पर आपको जो बैलेंस दिया है 1,70,000 दिया है. तो दिस इज ऑन 31st मार्च. इसका मतलब वो जो 10,000 की एडिशनल कैपिटल अक्टूबर में इंट्रोड्यूस की थी वो इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक. तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे क्योंकि वो 10,000 कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अक्टूबर में. तो उस पर सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी कैपिटल पे पूरे 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा. बट वो जो 10,000 की कैपिटल न्यू इंट्रोड्यूस की थी उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट पे किया जाएगा. सो ऑन 1,60,000 यू विल कैलकुलेट फॉर 12 months and on 10,000 you will calculate for 6 months. Then both will be added. तो मेन पॉइंट इज 10,000 अलग से ऐड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी अक्टूबर में इंट्रोड्यूस हो चुका. तो मार्च में ये जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है इसमें वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, इट इज ऑलरेडी एडेड इन दैट. सो यू विल टेक 1,60,000 प्लस 10,000. फाइन. सो नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम. तो इसकी ड्राइंग्स यहाँ पर आपको मेंशन्ड होंगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव कर रहे हैं, दिस इज इनकम. तो यहाँ पर भी ये जो है अजम्पशन होती है कि ड्राइंग्स जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ईयर के बिगिनिंग में कर लिया हो. तो यूजुअली हम 6 months का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. इसके लिए आप वही नोट आप दे दोगे, फुट नोट आप प्रोवाइड कर दोगे दैट द ड्राइंग्स हैज़ बीन डन इन द मिडल ऑफ द ईयर. तो इसलिए जो आप इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज कर रहे हो, जो आपकी इनकम है, दैट विल बी फॉर 6 months. अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता हो सकता है कहीं पर आपका पूरा साल का चार्ज किया हो या कहीं पर 6 महीने का चार्ज किया होगा. सो टू सेफगार्ड योरसेल्फ यू कैन गिव अ नोट कि आप कितना महीना एक्सपेक्ट करके चल रहे हो. आप मान रहे हो 6 महीने का या आप मान रहे हो पूरे साल का, यू कैन टेक एनी. बट जो हमारा फिजिबल साउंड करता है वो 6 months है कि इन बिटवीन द ईयर ड्राइंग्स हुई होंगी, इनिशियली ड्राइंग्स नहीं हुई होंगी. तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज करेंगे. फिर ये वाले अच्छे से समझिए. गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड. ये बिल्कुल सेम है जैसा आपने अभी पीछे किया, सेम आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है. 10,000 के गुड्स जो है फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए. इंश्योरेंस कंपनी ने 60% क्लेम एक्सेप्ट किया और बाकी जो है वो नहीं अप्रूव हुआ. और वो क्लेम जो है कब रिसीव हुआ, 10 अप्रैल को. तो ये हम बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बना रहे हैं 31 मार्च को. तो जब तक वो रिसीव नहीं हुआ है वो तो वो येट टू बी रिसीव हो गया जैसे आपका पिछले क्वेश्चन में था. तो टोटल 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 10,000 आ जाएगा, ठीक है. P&L अकाउंट में 60% क्लेम अप्रूव हो गया, 40% नहीं हुआ तो 40% इज नेट लॉस. तो 10,000 का 40% मतलब 4,000 आपका नेट लॉस है. P&L अकाउंट में लॉस बाय फायर दिखा दोगे. और ये जो 6,000 रुपये रिसीव करने हैं, 60% जो हमारा लिखा है, ये आपका एसेट है बिकॉज 31 मार्च को आपने उसको रिसीव
नहीं किया, it is yet to be received on that date, so it will be shown as asset. Next is goods worth rupees 10,000 were sent to a customer on approval basis and have been accounted in the books as actual sales. 10,000 के गुड्स कस्टमर को अप्रूवल के लिए भेजे थे कि अगर वो अप्रूव कर देगा तो वो उसकी हम बेच देंगे उसको, और अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो गुड्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। बट उन गुड्स को इन्होंने एज एन एक्चुअल सेल्स अपनी बुक में शो कर दिया। ठीक है, द गुड्स रिमेन्ड अनअप्रूव्ड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को भी वो गुड्स जो थे अनअप्रूव्ड रह गए थे। उन गुड्स की कॉस्ट जो है वो 8,000 है। तो यहाँ पर जहाँ भी आपके गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल होते हैं, ठीक है, तो वो जब तक उनका अप्रूवल नहीं आता वो सेल्स नहीं मानी जाती। तो अगर हमने यहाँ पर सेल्स दिखा दी है तो वो गलत दिखा दी, ये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में हमेशा आपको दो अमाउंट्स मिलेंगे, एक उसका मिलेगी कॉस्ट और एक मिलेगा उसकी वो वाली वैल्यू जिसपे उसको अप्रूवल के लिए भेजा गया है, जिसको हम सेल्स प्राइस बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 8,000 और सेल्स प्राइस है 10,000। ठीक है, तो सेल्स हमेशा सेल्स प्राइस पर होती है, तो सेल्स में से सेल्स प्राइस मतलब 10,000 की वैल्यू माइनस कर देंगे। और क्योंकि अगर वो सेल्स नहीं है तो दिस इज आर गुड्स, सो इट विल बी शोन एज स्टॉक, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। सेल्स में से 10,000 माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे, पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 8,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को बता रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में ये 10,000 की गुड्स सेल्स नहीं है, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स। जो हमने गलती से ऐड कर दिया इसको हम वापस माइनस कर देंगे, और जब वो सेल्स नहीं है तो वो हमारे गुड्स हुए, तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो सेल्स में से हमेशा सेल्स प्राइस माइनस करोगे और स्टॉक में हमेशा कॉस्ट प्राइस ऐड करोगे। ठीक है, तो ये दोनों की एक एक एंट्री हो गई। जब अप्रूवल बेसिस पे भेजा तो उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट तो रिसीव नहीं हुई होगी, तो इसका मतलब उससे हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए होंगे। ये 10,000 के गुड्स जब हमने कस्टमर को भेजे हैं, हम सेल्स दिखा रहे हैं, तो उससे हमारे डेटर्स अफेक्ट हुए होंगे, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। दिस 10,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स and 8,000 will be added in closing stock in the balance sheet. Next is received credit purchase invoice of 10,500 and recorded in the books, but goods were not received till the end of accounting year. तो ये जो 10,500 के गुड्स हैं ये हमारे क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। ये मतलब वहां से हमने खरीद चुके हैं बट अभी तक हमारे पास रिसीव नहीं हुए, तो वो हमारे रिसीव हो जाएंगे तो वो किस में आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में। सो दिस विल बी एडेड इन योर क्लोजिंग स्टॉक। और गुड्स येट टू बी रिसीव्ड है, एसेट है, एसेट साइड पर शो कर दोगे गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो अगेन क्लोजिंग स्टॉक में दोनों की एडजस्टमेंट है, एफ की भी और जी की भी। लास्ट वन इज मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो ये आपने ये पॉइंट तो पहले किया होगा कि जो नेट प्रॉफिट आपका आएगा कमीशन चार्ज करने के बाद उसका 5% कमीशन पे किया जा रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सीधा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई 5/105। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, जब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन के बेसिस पर कमीशन पे करने को दिया जा रहा है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई 5/105। तो एक तो कमीशन आपका यहाँ पर आ गया, दूसरा क्योंकि हमें ऊपर पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी कमीशन पेड की एंट्री नहीं थी कि हमने मैनेजर को कमीशन पे किया है, इट मीन्स इट इज अनपेड, और अनपेड एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज आप कर लेना, इसके आंसर्स मैं बता रही हूँ, प्लीज नोट डाउन ताकि आपका मैच हो जाए। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 1 लाख। प्लीज नोट इट डाउन, इट शुड मैच विद योर आंसर्स। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, नेट प्रॉफिट 70,000 and balance sheet total is 5,20,550.
5,20,550. I'm repeating, gross profit 1 lakh, net profit 70,000, and balance sheet total should be 5,20,550. ठीक है? So you have to complete it. In the next class, we'll start with the next topic, NPO. I think this has been given only in your schedule. शेड्यूल में NPO ही दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम NPO शुरू करें. अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है. They can raise your hand. I am ending my class here. Those who have done, they can leave. Those who have doubt, they can ask their doubt. ठीक है, जो जिनका हो गया यहाँ तक, जिनको सब समझ में आ गया, वो क्लास लीव कर सकते हैं. जिनका अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो पूछने के लिए अपना हैंड रेज कर सकते हैं. रेस्ट कैन लीव दिस मीटिंग. जिनको मैंने अनम्यूट अलाउ किया था, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप. अश्विनी शुक्ला, आई एम allowing your mic now. Give me a second. Yes, Ashwini, do you want to ask something? Ashwini Shukla. Rahul Joshi. Rahul Joshi, any doubt? You have raised your hand. Why? Nikhil Shukla. निखिल शुक्ला, कुछ पूछना है आपको? बेटा कोई डाउट है तो यू कैन स्टे इन द मीटिंग, अदरवाइज यू कैन लीव दिस मीटिंग. नथिंग न्यू विल गो ऑन नाउ, ओनली आई विल टेक अप द डाउट्स. आई एम टेकिंग 5 minutes. 5 minutes में जिसको अगर कोई डाउट है तो दे कैन स्टे, अदरवाइज रेस्ट कैन लीव दिस मीटिंग. Akash Sharma. Akash Sharma, do you have any doubt? Riya, whose name I am taking, they can unmute themselves and ask their queries. जिनको मैं नाम ले रही हूँ, I am calling their name, they can unmute themselves. Priyanka. Priyanka, do you have any doubt? मैम. हाँ जी बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मैं ये बोल रहा था कि आपका जो बुक जो प्रेफर करती हो आप जी, तो आप फ्रंट एंड बैक का मुझे दिखा सकते हैं आप. मैंने क्योंकि आपने बोला था डॉक्टर. Right now I am not having the latest edition. In a few of days I will get the latest edition of book, then I will show you the cover page. मैम यही मतलब जो सेम क्वेश्चंस है वही बुक में मिलेंगी ना डॉक्टर भूषण बीके गोयल के बुक में? Yes, you will get the questions there. उसमें आपको प्रोग्राम की आप बुक लेना, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से मिलेगी आपको. ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर है तो दैट इज फॉर ऑनर स्टूडेंट्स ओनली. So you have to take basic financial accounting. That was meant for your program students. All right. मैम ये आपका मतलब कि जो स्क्रीन है वो मैंने पिन तो किया था, लेकिन चैट का ही केवल पिन आ रहा था, वो वीडियो का नहीं आ रहा था. तो पूरा क्लियर मतलब कि आपका केवल फेस आ रहा है और पीछे का केवल आधा पूरा मतलब पूरा नहीं आ रहा है. ऐसा मैंने मिनिमाइज भी किया था और मैक्सिमाइज का है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं पूरा लिख भी नहीं पाया. I'll ask from the SOL जो भी हमारे helping वहाँ पे hands हैं, then I'll present your query there. क्योंकि मैम आपका जो वीडियो बहुत सारे जन का दिखा रहा है, मतलब प्रोफाइल दिखा रहा है, और आपका भी उसी में ऐड करके बता रहा है, क्योंकि सामने पूरा आ नहीं रहा है ना. I was not aware of. I thought you can pin myself.
and then my मैम, screen वो will इसमें be ऑप्शन नहीं enlarged. है। चैट को ही केवल पिन कर सकते हैं मैम, आपको पिन नहीं कर सकते, इसमें दिया ही नहीं है। अभी एक मिनट, आई एम ट्राइंग समथिंग। अब क्या मेरी बड़ा हो गया क्या मेरा ये बोर्ड? नहीं मैम, मैम, बोर्ड आपका बड़ा एक्चुअली क्या है, अभी आपने स्क्रीन शेयर की हुई है। अगर आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देंगे तो आपकी पिक्चर जो है फुल हो जाएगी। Okay, मैम, sir. अभी Okay, आया। next time I'll take care of this. Actually, I was अभी not आया, aware. आया, अभी आया। अभी आया है, ठीक है, तो next time I'll take care about it. यस मैम। Thank you so much. Sorry for inconvenience today. In next time I'll take care of it. I'll stop sharing my screen, then I'll start writing on the board. So it will be more clear to you in that case. Anything else? Okay, goodbye then. See you in the next class. Fine, with the new topic NPO. तो उसका जो बेसिक है प्लीज पढ़ के आना। एंड स्टूडेंट्स प्लीज अपने लॉगिन